Okay, today we will discuss IELTS speaking part 2, and this is a cue card about an object or a thing. So sometimes you will get a cue card that is related to describing an object or a thing. So how to describe an object or a thing? For example, if you get this cue card in your exams, that is describe an object or thing that is special to you. So obviously, like any other subject, first of all you will have to introduce the object, which one it is, वो है कौन सा, आपने उस object के बारे में बताने की कोशिश करनी है. Next is the object I would like to describe is a watch. The object I would like to describe is a laptop. The object I would like to describe is a chair. जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से. The next one is description. So you would describe that object, and afterwards you would tell its significance, that why this object is special to you, and if there is any history related to that specific object, that how did you get that object, and what is its emotional value for you, how you are attached to it, and how you conclude it. Okay, so first of all we will try to discuss the example, and afterwards we would discuss its parts. Okay, for example, first of all we have to introduce that object. You can say the object I'd like to describe is my grandmother's watch. So I think if someone is too much attached to his or her grandparents or grandmother, so everything is related to the grandmother. Okay, so you can change these words, my grandmother, depending upon the object. Okay, so you can change that. The object I would like to describe is my laptop. The object I would like to describe is a projector. So whatever it is. So when you would do that, number 2 point would be, let's see what's the number 2 point is description. So you would have to describe that object, that how it has been made. Okay, and you will give the description of that specific object. For example, this object is a beautiful gold wristwatch made of high quality leather and metal and has intricate engravings on its face. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसमें नक्शो निगार बने हुए हैं, कंधा किए गए हैं, इंट्रिकेट पेचीदा किस्म के उसके सामने वाली जगह पे. ठीक है, तो इसमें आपको अगर कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसी तरह से उसको ये बताएंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज अ वंडरफुल प्रोजेक्टर. ठीक है, it has been made with the silicon and the plastic and what else, ठीक है, and many different metals and things that I don't know. Okay, and there is a beautiful design over it. तो अब आपको अगर एक सांस में तीन इतना लंबा फिक्रा नहीं भी कह सकते तो क्या करें, इसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें. ठीक है, कि इट्स अ वंडरफुल वॉच. ठीक है, and it has been made with a great quality leather. ठीक है, and there are different designs on its face. बात समझ रहे हैं ना, जहां जहां पे कॉमा है आप अगर चाहें तो इस पे शॉर्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या बयान करेंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज स्पेशल टू मी. सो ऑब्वियसली how you are attached to this object, so you can also tell that this object is special to me because it was passed down to me from my grandfather. Yeah, because my father gifted me, because my friend gifted me. तो आपने उस चीज़ की स्पेशलिटी बताने की कोशिश करनी है कि वो आपके लिए स्पेशल क्यों है. फिर यहाँ पे भी अगर आपने सेंटेंस अलग करना है तो कर दें, इट रिप्रेजेंट्स आवर फैमिलीज हिस्ट्री. ये हमारे ख़ानदान की जो हिस्ट्री है उसकी नुमाइंदगी करता है. एंड सिम्बलाइजेज हर लव, ये उनकी मोहब्बत की गमाजी है, की गमाजी करता है. एंड लेगेसी, और ये क्या है, ये हमारी विरासत है. मीन्स कि उन्होंने, ये एक बहुत बड़ी निशानी है उनकी तरफ से. तो इसके लिए आप वो भी कह सकते हैं, इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा फिक्रा है किसी भी की भी तरफ से, इट्स टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई फादर. तो इसके बाद है कि आप उस चीज़ की बेटे कुछ हिस्ट्री अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं. यू कैन से दैट आई गॉट दिस ऑब्जेक्ट ऑन माई 18th बर्थडे. So I got this object on my previous birthday. I got this object way back in 90s and it has been with me for over 10 years. तो अब आप इस हिसाब से, ये तो सिंपल सा फिक्र है. फिर उसके बाद
हाउ योर फीलिंग्स आर अटैच टू इट, ठीक है, तो आपने अपनी फीलिंग्स इस हिसाब से इसको बताने की कोशिश करनी। सो दिस ऑब्जेक्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर्स स्टोरीज एंड मेक्स मी फील कनेक्टेड टू हर एंड आवर फैमिलीज पास। तो मुझे मेरा माजी याद आता है, जो कहानियां दादी माँ सुनाती थी उनसे ये रेलिवेंट है। फिर उसके बाद बेटे आप इसको क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ओवरऑल दिस ऑब्जेक्ट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर मी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स माई फैमिलीज लव एंड हेरिटेज। और वो कहता है कि मजमूई तौर पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जज्बाती लिहाज से मेरे लिए बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये शो करता है हमारे ख़ानदान की मोहब्बत और जो हमारा अजीम विरसा है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल व्हाट विल यू डू, यू विल फॉलो दीज स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है बेटे, कुछ इंट्रोडक्शन करवाना है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कि वो चीज़ कौन सी है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि ये किस चीज़ की बनी हुई है और इसके कोई स्पेशल अगर फीचर्स हैं तो वो आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस, आपके लिए इसकी क्या अहमियत है। फिर आप उसकी बेटे हिस्ट्री बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री दोनों ही एक चीज़ें हों, आप इनको मिलाकर भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत अहम चीज़ है, हर चीज़ को आपने अपने व्यूज़ के साथ अटैच कर देना है कि आप कैसे इस चीज़ के साथ इमोशनली अटैच हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू शुड कंक्लूड दैट एंड बिलीव यू मी, इफ यू जस्ट पुट सम ऑफ इमोशंस इनटू व्हाटएवर यू आर सेइंग, so it would be more than enough, it would be more than 1 minute, because you would look at the cue card and try to answer those questions that are present on the cue card, ठीक है। जो क्यू कार्ड पे वो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप उनको भी बेटा जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अगर आता है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू फाइंड पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल, आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा लगा है। वेयर द आर्ट वर्क ऑब्जेक्ट इज, कहाँ पर वो पड़ा हुआ है। हाउ इट वॉज मेड, कैसे ये बनाया गया। व्हाट इट लुक्स लाइक, कैसा वो लगता है। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फाइंड इट पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इनमें आप उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को बेटे जहन में रखते हुए आप इसका आंसर जो है वो देंगे।